Bismillahirrahmanirrahim. Here you can see in the first picture, picture A, children are talking. Second picture B, some children are reading. In the picture C, children are jumping and playing, while in picture D, a child is eating. Observe these pictures and then compare these pictures with the following actions. Now you are going to see some other actions. Observe them carefully and then make a comparison between the both. Now compare these two actions, the action of pupil when the light strikes on it and the action of your leg when a hammer accidentally strikes your knee, with all these four actions: talking, reading, jumping, eating. What difference do you feel? Can you do it with your will? You can talk whenever you want, and you do not talk when you do not want. In the same way, you can perform all these actions when you want to do. You can eat by your own will, while the action of pupil and the action of leg respond against hammer was not in your control. You cannot control the size of your pupil and you cannot control the movement of your leg when something strikes suddenly on your knee. So this is the basic difference between these two types of actions. One we can control with our will, with our mental training, and the other we cannot control with our mental training. So these two actions for the present lecture, our concern is the actions that we cannot control our will. Then how can they perform? They can be performed under reflex action. So आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि action of pupil when the light falls on it and the action of response, you can say it a response as well, response of knee when a hammer strikes on it, the cause of these actions. So dear students, these two actions takes place under reflex action. What is reflex action and how does it work? We are going to study. Just open your book at page 10 and you will find the topic 1.3, that is our concern for today. अब reflex action क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, चलिए देखते हैं. रिफ्लेक्स एक्शन एक्चुअली इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है किसी भी स्टिमुलस के लिए. स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस के बारे में हम पढ़ चुके हैं. इट इज एनी चेंज इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली. आवर बॉडी सेंस दिस चेंज, send a message, a signal to brain, and a response is generated. In the previous lecture we studied that stimulus is received by receptors. Receptor can be a cell in a muscle or in an organ. Stimulus, any change, is received by receptor through a specialized cells, and receptor send this signal to brain. Brain analyze this message and then create a response. This is usually happen with our nervous system. All our actions, all our thoughts, all our works work through this path. Receptors send signal to brain and brain then generate message through a muscle. लेकिन सवाल ये है कि क्या तमाम मैसेजेस ब्रेन को सेंड किए जाते हैं? हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ मैसेजेस स्पाइनल कॉर्ड को भी सेंड किए जाते हैं.
ब्रेन ऐसे मैसेजेस की कन्वर्सेशन में, ऐसे मैसेजेस की कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ऐसे तमाम मैसेजेस जो ब्रेन की बजाय स्पाइनल कॉर्ड को सेंड किए जाते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस कहलाते हैं। अब ये रिफ्लेक्स एक्शंस क्यों होते हैं और इनका क्या पर्पस है वो हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। अब आपने देखा कि जब लाइट आई पे फॉल करती है तो हम पुपिल के मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स हो गया। पुपिल के साइज का रिड्यूस होना एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है अगेंस्ट लाइट। लाइट इज अ स्टिमुलस इन दिस केस। और दूसरे केस में जब नी पे कोई चीज स्ट्राइक की जाती है तो नी अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करता है। ये मूवमेंट भी हमारे कॉन्शियस में नहीं होती, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये भी एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है अगेंस्ट द स्टिमुलस। और इस केस में स्टिमुलस है हैमर। इस केस को अब हम मजीद फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन द हैमर स्ट्राइक्स एक्सीडेंटली टू योर नी, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, strikes the knee, here a stimulus of pain generated और डिप्रेशन जनरेटेड। इस जब भी नी पे ये स्ट्राइक होगी तो यहाँ पे एक प्रेशर वेव बनेगी या यहाँ पे पेन फील होगी। वो पेन एक स्टिमुलस जनरेट करेगी, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेगी हमारे मसल्स में। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे मसल्स में मौजूद रिसेप्टर सेल्स रिसीव करेंगे और यहाँ से सिग्नल ट्रांसफ़र किया जाएगा स्पाइनल कॉर्ड को। ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है, ये जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इट इज़ द सेक्शन ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इट्स अ लॉन्ग स्ट्रक्चर, इट्स ओनली इट्स सेक्शन। अब ये भी देखा था कि स्पाइनल कॉर्ड के में से कुछ पेयर ऑफ नर्व्स अराइज होती हैं जिन्हें क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। ये नर्व्स हमेशा पेयर की फॉर्म में होती हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड का जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी इसकी डोर्सल साइड से जो नर्व अराइज हो रही है वो इस सिग्नल को रिसीव करेगी और ये मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में तक पहुंच जाएगा। अब नॉर्मल केसेस में या जो हमारे रूटीन के एक्शंस है उनमें तो ये होता था कि स्पाइनल कॉर्ड ये मैसेज ट्रांसफ़र कर देता था ब्रेन को, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन के केसेस में ये मैसेज ब्रेन को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड खुद से ही इसे प्रोसेस करेगा। यहाँ पे एक दूसरी तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे जिन्हें इंटर न्यूरॉन कहा जाएगा। इंटर न्यूरॉन उस मैसेज को एनालाइज करेंगे और इसकी नीचे वाली साइड से एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा, एक नर्व वर्किंग में आएगी और वो वर्किंग जो भी इस पे काम करना होगा इस नी के अगेंस्ट, मैसेज दोबारा मसल तक पहुंचा दिया जाएगा जिस मसल ने काम करना है। इसकी डायरेक्शन इस तरफ। लिहाजा स्पाइनल कॉर्ड खुद से इस पर वर्किंग करके मैसेज सेंड करेगा मसल को। लेग इस सिलसिले में क्या करेगी इसके बाद? लेग में ये होगा, लेग के वो मसल्स जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड ने अपना मैसेज सेंड किया है वो इसके मुताबिक रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे और इस रिस्पॉन्स के नतीजे में लेग फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही लेग को स्टिमुलस रिसीव हुआ, लेग अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करती है। सो ये तमाम प्रोसेस रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। The whole process in which spinal cord itself analyze and process the messages and generate the response is called reflex action. As the brain is not involved in this case, so these are involuntary actions. They happen by itself. अब हम इन पिक्चर्स को लेबल करते हुए देखते हैं कि जो नर्व जब रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, स्टिमुलस जनरेट हुआ और स्टिमुलस ट्रेवल हुआ, तो वो किस न्यूरॉन के थ्रू हुआ? ये सेंसरी न्यूरॉन थे। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है कि वो रिसेप्टर से सिग्नल को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ट्रांसफ़र करता है। स्पाइनल कॉर्ड के वो न्यूरॉन्स जिन्होंने इस प्रोसेस को एनालाइज किया वो इंटरन्यूरॉन्स थे। और वो न्यूरॉन्स जिन्होंने स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को ट्रांसफ़र किया, रिस्पॉन्स को कन्वे किया मसल तक, उनको मोटर न्यूरॉन्स कहा जाता है। सो दीज आर मोटर न्यूरॉन्स that takes the message from spinal cord and transfer it to the respective muscle that has to generate the response. So ये response था हमारा। लेग की मूवमेंट एक्चुअली एक रिस्पॉन्स था। वो जगह जहाँ पे ये सेंसरी न्यूरॉन्स जिन्होंने सिग्नल रिसीव किया वो सेंसरी रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट थे। यहाँ पे सिग्नल मूव किया सेंसरी रिसेप्टर्स तक, जिन्होंने सिग्नल परसीव किया वो सेंसरी रिसेप्टर्स। और ये हैमर एक्चुअली हमारा स्टिमुलस है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि स्टिमुलस एनी चेंज एक्सटर्नली और इंटरनली है, तो हैमर जिसने पेन को प्रोड्यूस किया वो एक्चुअली हमारा स्टिमुलस था। ये जगह हमारे टेंडन मसल है, जो कि टेंडन्स एक्चुअली ज्वाइन करते हैं मसल्स को और बोन्स को। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक लूप ड्रॉ किया गया है सेंसरी न्यूरॉन्स को बनाते हुए। तो सेंसरी न्यूरॉन्स को बनाते हुए ये लूप क्यों ड्रॉ किया गया है? ये लूप एक्चुअली सेल बॉडी है सेंसरी न्यूरॉन की। जब हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स स्टडी किए थे तो हमने देखा था कि न्यूरॉन्स में सेल बॉडी एक साइड पे होगी, उसके बाद एक्सॉन, उससे पहले भी एक्सॉन, फिर एक्सॉन टर्मिनल्स एंड देन डेंड्राइट्स। सो ये लूप सेल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या इस पूरे लेंथ में सिर्फ ये एक ही सेल बॉडी है, तो क्या न्यूरॉन्स इतने लेंथी होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। इस पूरे प्रोसेस में 2-3 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं। नंबर 1 इज सेंसरी, सेकंड वन इज इंटरन्यूरॉन एंड थर्ड वन इज motor neuron. It is the whole process is called reflex action, and the neurons that move from stimulus to spinal cord and then again to back to effector is called reflex arc. हमारी टेक्स्ट बुक में एक और एग्जाम्पल दी गई है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मूवमेंट ऑफ आई पुपिल। Whenever you can see here, when the light is dim, compare the size of pupil, and when sudden bright light falls, then what happens to its size actually reduce. पुपिल का काम ये है कि वो अपने साइज को एडजस्ट कर लेता है इनकमिंग लाइट के मुताबिक। जितनी ज़रूरत लाइट की आंख को होती है सिर्फ इतनी ही लाइट अंदर जाने दी जाती है। सो पुपिल एक तरह से डायफ्राम के तौर पर भी काम करता है। डायफ्राम आप अच्छे से जानते हैं कि एक ऐसी विंडो होती है जो सिर्फ रिक्वायर्ड अमाउंट में चीज़ों को की मूवमेंट को अलाउ करती है। सो पुपिल भी सिर्फ इतनी ही अमाउंट ऑफ लाइट को अलाउ करेगा जितनी हमारे नर्व्स को, हमारी आइज़ को ज़रूरत होगी। तो जैसे ही लाइट डिम होगी हमारा रिस्पॉन्स एक जनरेट होगा और पुपिल डायलेट कर जाएगा, फैल जाएगा, इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ब्राइट लाइट होगी तो
आंख के पीछे रेटिना मसल्स, रेटिना वो मसल्स हैं जिनमें नर्व्स प्रेजेंट हैं। रेटिना मसल्स में मौजूद नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल सेंड करेंगी और स्पाइनल कॉर्ड फौरन से रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, जिसके अगेंस्ट आई के मसल्स जो कि इफेक्टेड के तौर पे काम करेंगे वो पुपिल का साइज रिड्यूस कर देंगे। और आई के वो मसल्स जो एज ए इफेक्टर काम करते हैं वो आइरिस हैं। दीज आर द इफेक्टर्स। और आई का सेंसरी रिसेप्टर सेक्शन कौन सा था? रेटिना। रेटिना एक्चुअली कंटेन नर्व्स that are connected to spinal cord or brain. As per situation, message is transferred to brain or spinal cord. So this was about reflex action. Here a question arises: what will happen if the stimulus is sent to brain instead of spinal cord? Let's move back to our previous example. इस एग्जाम्पल को दोबारा देखते हैं कि सेंसरी रिसेप्टर्स ने मैसेज को फॉरवर्ड किया स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल सिचुएशंस में मैसेज ट्रांसफ़र कर देता है ब्रेन की तरफ। अब अगर मैसेज ब्रेन की तरफ ट्रांसफ़र किया जाए तो वो ब्रेन कुछ टाइम लेगा उसे प्रोसेस करने में और फिर रिस्पांस जनरेट करने में। वो रिस्पांस वापस स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएगा और फिर स्पाइनल कॉर्ड उसे इफेक्टेड की तरफ सेंड करेगा। इतनी देर में यहाँ जो भी स्टिमुलस है वो चूंकि बहुत इंटेंस रिस्पांस चाह रहा है, अगर यहाँ से ब्रेन की तरफ से मैसेज आने में थोड़ी डिले हो जाएगा तो यहाँ मौजूद हैमर मसल को किसी भी तरह का नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये तो एक एग्जांपल थी। अगर यहाँ पे फायर हो और फायर की सूरत में आप देखते हैं कि फ़ौरन से हम अपना हैंड रिफ्लेक्स बैक कर लेते हैं। जब भी हाथ कोई फायर को लगता है तो फ़ौरन से हमारा हाथ पीछे की तरफ मूव करता है। अगर ब्रेन से रिस्पांस आने में थोड़े से भी डिले हो जाए तो हम बुरी तरह से जख्मी भी हो सकते हैं, हमें बहुत सीवियर इंजरी भी हो सकती है। लिहाजा ब्रेन की तरफ मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया जाता बल्कि स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ उसे एनालाइज करके प्रोसेस करके सिग्नल रिस्पांस जनरेट करवाता है। सो टू अवॉइड द डिले इन क्रिएटिंग द रिस्पांस, मैसेज इज नॉट सेंड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ एनालाइज इट. So we can say that reflex actions are quick responses, very very quick responses. ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में काम करते हैं, जबकि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं। ब्रेन से होने वाले एक्शंस स्पाइनल कॉर्ड की निस्बत थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट स्पाइनल कॉर्ड। आपकी बुक में पेज 11 पे भी नी जर्क की बहुत अच्छी एग्जांपल दी गई है। प्रोसेस सेम है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे ही स्टिमुलस रिसीव होगा, मसल में मौजूद सेंसरी रिसेप्टर्स उस स्टिमुलस को रिसीव करके उसे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। ये सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे। सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज एक्चुअली इंटर न्यूरॉन्स को ट्रांसफर करेंगे। इंटर न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है जो प्रोसेस को एनालाइज करेंगे और मोटर न्यूरॉन्स की मदद से रिस्पॉन्स एक्चुअली दोबारा मसल्स को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।